مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ والد حسین ہیں مرتضیٰ مرتضیٰ غمزدوں کا چین ہے مرتضیٰ مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ 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 یا علی مرتضیٰ 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 یا علی مرتضیٰ 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 ہو کرم ہو عطا مرتضیٰ مرتضیٰ در پہ آئے گدا مرتضیٰ مرتضیٰ بھیک دیجئے شہا مرتضیٰ مرتضیٰ درد دل کر عطا مرتضیٰ مرتضیٰ آل کا واسطہ مرتضیٰ مرتضیٰ دو گناہ کی دوا مرتضیٰ مرتضیٰ مجھ کو نیک دو بنا مرتضیٰ مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علم کا میں شگر ہوں دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شبر و شبیر کے والد ہو تم ماں فاطمہ شبر و شبیر کے والد ہو تم ماں فاطمہ سید و سردار ماں سید و سردار ماں سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا واسطہ حسنین کا مولا علی عاشق مصطفیٰ مرتضیٰ مرتضیٰ سید الاولیاء مرتضیٰ مرتضیٰ ہے خائف خدا مرتضیٰ مرتضیٰ متقی پارسا مرتضیٰ مرتضیٰ بالیقین دلیر ہے مرتضیٰ مرتضیٰ اپنے رب کے شیر ہے مرتضیٰ مرتضیٰ شہر علم کے ہے باپ مرتضیٰ مرتضیٰ گل حسن حسود رات مرتضیٰ مرتضیٰ والد حسین ہیں مرتضیٰ مرتضیٰ غمزدوں کا چین ہے مرتضیٰ مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ 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 یا علی
دل کر عطا مرتضی مرتضی حال کا واسطہ مرتضی 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 یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا شفر و شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو شفر و شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں اب آپ کا خواب میں اب آپ کا خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی ہے خائف خدا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی شہر علم کے باپ مرتضی مرتضی اپنے رب کے شیر ہے مرتضی مرتضی الحسن مسعود تراب مرتضی مرتضی والد حسین ہے مرتضی مرتضی غمزدوں کا چین ہے مرتضی مرتضی یا علی مرتضی 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 ہو کرم ہو عطا مرتضی مرتضی سر پہ آئے ہیں گدا مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شاہ مرتضی 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 نعرہ میرا نام ڈاکٹر غلام سرور ہے اور میں سیلانی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں تھیلیسیمیا اور بلڈ بینک کا. صبح تہجد میں آج میں بہت پریشان تھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ یہ جو بچے ہیں پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، باقی لوگ ان کے خاندان کے پریشان ہیں، بلڈ نہیں مل رہا، ان بچوں کا سروائیو کرنا عید تک مشکل ہے. جو اسٹاک ہم نے جمع کیا وہ ختم ہو گیا تھا. آج صبح جب ہم بچوں کی اوپیڈی کر رہے تھے اس میں بہت سارے بچے ایسے تھے جو بہت دور دراز سے آئے ہوئے تھے. جب ان کی ہیموگلوبن چیک کی تو کسی کی 4 گرام تھی، کسی کی 5 گرام تھی، اور ہمارے پاس بلڈ بینک میں بالکل اسٹاک نہیں تھا کیونکہ رمضان کا اینڈ شروع ہو گیا اور جتنے بھی اسٹاک میں بلڈ تھے وہ ہم آلریڈی بچوں کو لگا چکے تھے. 580 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 40 بچے روز آتے ہیں جن کو بلڈ کمپلسری لگانا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی انتظامیہ کو کال دی کہ ہمارے پاس بلڈ بالکل نہیں ہے تو آپ ہی ہماری مدد کر سکتے. رمضان شریف میں تو نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو بیچارے بچے یار تھیلیسیمیا کے کتنی اذیت میں ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ ان سے زیادہ شاید اذیت میں ہوتے ہوں، ٹینشن میں. تو اب اس میں رمضان شریف تو کشادگی کا مہینہ ہے اور لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم ان بیچاروں کو پریشان حالوں کو دکھیاروں کو ہم بھول جائیں. تو آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنی چاہیے، اور روزے میں بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
تو یہ بالکل آپ بلڈ دیں. تو خون تو آپ یہ نہیں اس نیت سے دیں کہ آقا کی دکھیاری امت کا کوئی بھی فرد ہوگا یہ میرا خون اس کے لیے، چاہے وہ تھیلیسیمیا کا ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے. تو آپ آگے بڑھیے. میرے سارے مدنی بیٹے جو ہیں وہ اپنا خون ڈونیٹ کریں. میں خدا کی قسم اگر میرا خون کام آتا ہوتا نا تو میں تو جو بھی اس کی ڈاکٹر سے پیریڈ معلوم کر کے میرا ذہن بنتا کہ میں خون دیا کرتا. منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد شکریہ یار کار شکریہ مرشد شکریہ یار کار شکریہ. کیونکہ کووڈ کی سچویشن میں جب لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھ رہے تھے تو دعوت اسلامی نے اتنا بلڈ دیا کہ ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ سروائیو کر گئی. اگر اس وقت دعوت اسلامی ہمارا ساتھ نہ دیتی تو شاید ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا کہ یہ سروائیو کرتے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں گرمی کی سچویشن میں اب جب بلڈ ختم ہوا تو دوبارہ دعوت اسلامی نے اتنا دوبارہ کوآپریٹ کیا کہ اچانک کال دی کہ آ کے کیمپ لگا لیں. ہمارے اسلامی بھائی بہت جوش و خروش سے بلڈ دینے کے لیے تیار ہیں. اس بار ابھی یہ ہوا کہ رمضان میں کچھ بلڈ کی مزید شارٹیج ہو گئی اور جو ادارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں ان کے پاس کافی تعداد میں بلڈ شارٹیج ہو گیا. تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت تک بھی یہ پیغام پہنچا اور امیر اہل سنت نے آج جب اس کا اعلان فرمایا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس اعلان کی بعد یوں کہہ لیں کہ بالکل نئے انداز سے اسلامی بھائی جمع ہونے شروع ہو گئے. اور ان کے اعلان کے فوراً بعد یہ رسپانس آیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اس اعلان کے بعد مجھے پانی پینے کا ٹائم نہیں ملا الحمدللہ. مطلب اتنا ہو گیا کہ میں ماشاءاللہ مرشد کے کرم سے بہت یہاں پہ رش ہو گیا ہے اور اتنا ہو گیا کہ میں پبلک کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پورا ایک ہجوم ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں پھر بھی الحمدللہ میں کروں گا, سری تک ان کو لے کر چلوں گا انشاءاللہ. ہم ہر جگہ ایسا ڈونر لیتے ہیں, جاتے ہیں, کیمپیں لگواتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے جو انسانی جذبہ دیکھا لوگوں کے اندر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں صحیح ہے تو وہ قابل تعریف ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ بلڈ جب جا کے کل ان کو بچوں کو لگے گا, میں نہیں سکتا ان کے دلوں سے کیسی دعائیں نکلیں گے دعوت اسلامی کے لیے, ان ڈونرز کے لیے, ان حضرات کے لیے, انتظامیہ کے لیے, جنہوں نے کاوشیں کی ہیں ان کے لیے. اس سے بڑا اجر میری نظر میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ عبادت کا ایک ایسا حصہ ہے جس نے انسانوں کی زندگیاں بچانی ہے, اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ ہی صرف دے سکتا. محمد توصیف اختر. توصیف بھائی کہاں سے آئے؟ لیاری سے. وہاں کے اعتکاف میں یہاں پر تو ابھی ادھر کس سلسلے میں آئے؟ جی یہاں پر میں خون دینے کے لیے آیا ہوں, عطیہ کرنے کے لیے. تو کیسے ذہن بن گیا خون دینے کا؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک جذبہ آ گیا, ماشاءاللہ کسی کی زندگی سنور جائے گی, یہی اللہ کے راہ میں ماشاءاللہ. بس میرے کو خود بھی پتہ نہیں, کبھی پہلے دیا نہیں. محمد رضا. محمد رضا آپ کس لیے کھڑے ہیں یہاں پہ؟ بلڈ ڈونیٹ کرنے. بس ہمارے پیر صاحب نے کہا بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو ہم آ گئے ہیں. پیر صاحب نے کہا کہ اگر میرا خون چاہیے تو لے لیں. تو ہم نے کہا پیر صاحب اتنے بزرگ ہو کے کہہ رہے ہیں تو ہم نوجوان ہو کے کیوں نہ بڑھیں آگے. جی جب بابا جانی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے نا کہ میں حاضر ہوں, چاہے جتنا مرضی نکال سکتے ہیں نکال لیں, تو اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. مجھ سے رہا نہیں گیا خون دینا, میں نے اس وجہ سے میں آ گیا. پہلے بنا پیر صاحب کے فرمان پہ گیا ہوں ایک دفعہ دینے, لیکن پتہ نہیں کیا نہیں دینے ہوا, لیکن اس دفعہ آپ آیا ہوں تو انشاءاللہ آپ دے کے ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. مریضوں کی جو ہے خدمت کرنی ہے انشاءاللہ, تو اس لیے بلڈ دینے کے لیے لائن میں لگا. یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے نا, ایک بچے یعنی کہ کسی انسان کی جان بچانا اور اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. ان کے والدین کی خوشی اور بچوں کی خوشی. جب میں یہاں پہ پرچی لکھوا رہا تھا نام اپنا, تو میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی یار پیر صاحب کی پیارے آقا کی دکھیاری امت کے بارے میں کیسے مطلب جذبات ہے. تو انہیں جذبات کو لیے ہوئے پیر صاحب کی دعائیں لینے کے لیے, بس یہ بلڈ دینے کے لیے میں حاضر ہو گیا تھا الحمدللہ. اٹلی سے آئے ہوں اعتکاف کے لیے. افریقن دوست ہیں ان کو ساتھ لے کے آئے ہوں کیونکہ ہم نے پہلے باپا کا میسیج سنا مدنی چینل پہ, کیونکہ ہم کسی کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد باپا نے بولا تو ڈونیٹ کرنا بنتا ہے. What is your name? عباس خمیس محمد عطاری القادر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Where you come from? From Zanzibar. مجھے اپنی اور سار دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے
कोशिश करनी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी 4-5 मरतबा दिया है और पिछले साल भी पापा के कहने के ऊपर मैंने खून दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने पीर और मुर्शिद के कहने के ऊपर खून अतियात किया। लोग अपना कारोबार करते हैं दौलत को इन्वेस्ट करके, और एक मुसलमान को चाहिए कि वो किसी की जान बचा के आखिरत के साथ इन्वेस्टमेंट करे। और पीर मुर्शिद का फरमान हो फिर मुरीद चूँ चुना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना कितने हैं यहाँ देने वाले। मैं सलाम करता हूँ इन तमाम लोगों को, इन डोनर्स को, इंतज़ामिया को, बाकी लोगों को कि ऐसे हालात में जब एहतिकाफ में बैठे हैं उन बच्चों का एहसास करते हुए यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उनकी जान बचाने के लिए, अमीर सुन्नत का हुक्म मानने के लिए, उन बच्चों का बचाने के लिए, उनके ख़ानदान की मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। ये नियत मैंने उनसे करवाई है कि जो 10 दिन के लिए एहतिकाफ में नहीं है। बाहर से भी साहब आते हैं, तो नफल वाले बाहर निकल जाते हैं, फिर खारिज मस्जिद जाते हैं तो एहतिकाफ उनका टूट जाता है। लेकिन इस वक्त शायद नफल वाले कम ही होंगे, 10 दिन वाले होंगे। ये याद रहे कि जब भी यानी ये तो ज़िंदगी में 1 सेकंड का भी नफल एहतिकाफ हो सकता है। मस्जिद में खाना पीना, सोना, सारी इफ्तार करना, आब ज़मज़म शरीफ पीना, नियाज करना, ये सब उसी सूरत में, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि एहतिकाफ की नियत की थी। एहतिकाफ की नियत की ही नहीं थी और मस्जिद में इफ्तार भी आ गया तो मस्जिद में अब इफ्तार कर नहीं सकते। अलबत्ता एहतिकाफ की नियत करके अब कर सकते हैं, इफ्तार और खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो हम मुनासिब तरीक़ा जिसमें एहतिकाफ का सवाब मिले वो यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत करें और ज़िक्र और दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1443 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 21वीं शब है। इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 6 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 21 ऐ लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21वीं शब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का शब उर्स है आपकी, और यौम शहादत 21 रमज़ान है। और आज की रात माशाअल्लाह हज़ारों हज़ार मोतकिफ़ हो गए। मोतकिफ़िन अपने अपने हिसाब से मसाजिद में आ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको मुबारक करे और कबूलियत का फैज़ान भी हो। मैं भी अपनी तरफ से तमाम मोतकिफ़िन को
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह अपना घर बार कारोबार सब छोड़कर मस्जिद में आकर बैठ गए 10 दिन के लिए या 9 दिन के लिए, जो नसीब हो जाए। अल्लाह पाक आप सब पर रहमत नाजिल करे और दिल भी लगे। देखिए बेटे, शुरू में दिल बाजों का तो नहीं लगता, ये रश हुजूम, इस्तिंजा खाने पे भीड़, तो वुज़ू खाने पर रश, तो फिर नई जगह, नींद भी बाजों का नहीं आती इतने रश में, ये सब अवारिज, फिर बाजों का पेट भी जाम हो जाता है। ये शुरू में इस तरह का होता है, 1 आध दिन 2 दिन भी, कभी बुखार भी हल्का फुल्का आ जाए, सर में दर्द हो जाए, ये भी मुमकिन है। ये पहले से इसलिए बताता हूँ आपको कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैदान छोड़ के भागना नहीं। हम उस मौला अली के गुलाम हैं कि जो तलवारों के झंकार और तीरों की बौछार में भी इन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा। शेर खुदा के हम गुलाम हैं। ये अल्लाह के घर में एयर कंडीशनड हाल आपको मिला है एतिकाफ के लिए, और माशाअल्लाह इतनी रौनक, पक्की पकाई खाने को मिल रही है, और पुरसुकून माहौल, मोहब्बत से लोग मिलते हैं। ना कोई आपको तलवार दिखा रहा, न तीर की अन्नी आपको दिखाई जा रही है, ना कोई आप पर कोई शोर कर रहा है, ना धूप है ना कुछ। फिर भी आप अगर थोड़ा सा दर्द सर हो, तो नींद थोड़ी उचाट हो, तो थोड़ा यानी कि यूं बेकरारी होता, बोले भागो भागो भागो, नहीं। तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। तो थोड़ा बहुत इम्तिहान हो तो जन्नत में जाना है ना, और वाया मदीना जाना है। सफ़र मदीना में भी आजमाइश होती है, हज में और आजमाइश बाज़ों का ज़्यादा होती है, रश वहाँ भी, बल्कि वहीं रश ज़्यादा होता है। ये तो रश कुछ भी नहीं है जो वहाँ रश होता है, जाने की तड़प भी सबको है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ सब जो हज का रिहर्सल कर रहे हैं, सफ़र मदीना का रिहर्सल कर रहे हैं कि यहाँ अगर हम तकलीफ़ें उठाने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह सफ़र मदीना में भी कुछ आसानियाँ हो जाएंगी तकलीफ़ सहने की। लोग जेल में भी तो भरे पड़े हैं बेचारे, कितना कितना अरसा तक जेल में पड़े होते हैं, वहाँ कोई आसाइशें थोड़ी होती है। यहाँ तो 10 दिन के लिए आपको इसी रहमतें अल्लाह करेगा। अभी तो आपको थोड़ा जज्बा होगा इस वक्त, लेकिन बाद में हो सकता है थोड़ी आजमाइश आए, फिर जज्बा वापस लौट आए, अगर भागे नहीं तो। और फिर ये क्या, फिर ऐसा मज़ा आएगा कि आप शायद इससे एक तादाद होगी जो कहेंगे तुम घर को न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता। इंशाअल्लाह यहाँ आपको बुजुर्ग मिलेंगे 60 70 साल के जो बोलेंगे हम इतने साल से पूरे महीने का इत्तिकाफ कर रहे हैं, ये मिलेंगे। तो आखिर इनको तो तकलीफ हो या न हो, जवान को तकलीफ हो, और एक दिन में 2 दिन में भागो भागो करके भाग जाए, ये नहीं। इंशाअल्लाह यहाँ रहेंगे, और अब तो अल्लाह के दर पर आ गए, अब मग़फ़िरत करवाए बगैर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी रहमत पर भरोसा है कि हमारी ज़रूर वो बंदा नवाजी फरमाएगा, हम पर करम फरमाएगा कि मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी मिलने का महीना है। और ये 10 दिन तो ख़ास अशरे आज़ादी जहन्नम, यानी इसमें तो ख़ास कर जहन्नम से आज़ादियाँ मिलती है। तो इंशाअल्लाह हम अब तो मौला के दर पे आप पड़े हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मतलब हम बस पड़े रहेंगे इंशाअल्लाह करीम। और आज 21वीं शब, एक तो मौला मुश्किल कुशा की निस्बत आपने सुनी, और दूसरी ये कि ये ताक रातें 5 आती हैं, 21, 23, 25वीं, 27वीं और 29वीं। तो 5 ताक रातों में लैलतुल क़द्र होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आज 21वीं रात है, कुछ पता नहीं, ऐन मुमकिन है कि आज ही लैलतुल क़द्र हो, जो कि 1000 महीनों से भी बढ़कर है। आइए लैलतुल क़द्र की दुआ भी पढ़ लेते हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल हूँ। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल मैं खिच्चीवाड़ा से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं मौला अली मुश्किल कुशा की मनक़बत सुनाऊँगा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला आशिक़े मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुर्तज़ा सैयदुल औलिया मुर्तज़ा मुर्तज़ा या अली मुर्तज़ा या अली मुर्तज़ा 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 हो करम हो अता मुर्तज़ा मुर्तज़ा जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद हसन अली रज़ा तारी सरूला से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू तुराब क्यों कहते हैं? इरशाद फरमा दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। हम सब के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, एक प्यारे प्यारे बच्चे ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मनक़बत सुनाई माशाअल्लाह। और दूसरी प्यारी बच्ची ने ग़ालिबन, वो भी बच्चा था, इन्होंने मतलब अबू तुराब कुनियत की वजह तस्मिया इसको बोलते हैं, यानी क्या वजह हुई, शुरू कैसे हुई है। तो हुआ यूँ कि एक बार हज़रत मौला अली और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कोई क्या आपस में कोई सी बातचीत हो गई, जिसकी बिना पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर से आ गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ढूंढने निकले तो ये एक जगह खाक पर लेटे हुए थे, वो मिट्टी जो थी वो मौला अली के मुबारक बदन को चूमे जा रही थी, लिपटे जा रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से फरमाया, कुम या आबा तुराब, उठ ए मिट्टी वाले। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जब सरकार ने फरमाया उठ, तो ये तो कि दिल बहुत बड़ी सादत, अब उठ गए और फिर ये क्या जो भी था वो मामला हल हो गया। इसके बाद आपने ये कुनियत तो कबूल कर ली, सरकार ने कुनियत दी अबू तुराब यानी मिट्टी वाला, और आप खुद फरमाया करते कि मुझे सारी कुनियतों में सबसे ज़्यादा यही पसंद है कि मुझे ज़बान मुस्तफ़ा से ये कुनियत मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मनाज़र मुनव्वर अत्तारी मंडी बावलदीन से किबला अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि जब इस्लामी बहनें इत्काफ़ बैठती हैं तो इत्काफ़ में क्या वो ठंडक के लिए गुस्ल कर सकती है, या हाथ मुंह धोने के लिए वज़ू खाने पे जा सकती है, या वो पैर किसी से फ़ोन पे बात कर सकती है, या जिसने पहले दिन अंदर जाना है मुलाकात करनी है उसने फिर भी जाना है, या कोई और भी जाकर मुलाकात कर सकता है। अच्छा, बाज़ इस्लामी बहनें ऐसे करती है कि जब वो अंदर बैठी होती है बिजली चली जाती है तो गर्मी की सूरत में वो जब रात को दूसरे अफराद सो जाए तो वो बाहर निकल जाती है, सेन वगैरह में बैठ जाती है, तो ऐसा करना कैसा? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। मस्जिद बैत में इस्लामी बहन को एहतिकाफ करना है। मस्जिद बैत के अंदर जो वाशरूम है वो भी और बाहर के तो सारे फिर जो भी घर का हिस्सा है वो सब खारिज है मस्जिद है। मस्जिद बैत में फिनाए मस्जिद नहीं होती जैसे दीगर मसाजिद में होती है। तो अब ये ठंडक के लिए यानी हाजत तबई और हाजत शरई के लिए तो जा सकती है, अगर गुस्ल फ़र्ज है तो जा सकेगी। ये ठंडक के लिए या जुम्मे के गुस्ल के लिए वो वाशरूम में या हम्माम में जाएंगी तो इनका एहतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह ये सहन में जैसे गर्मी होती है तो सहन में आ जाती हैं, तो ये वो सहन जबकि मस्जिद बैत का हिस्सा नहीं है, वहाँ नियत की नहीं हुई, तब तो ये वहाँ जाएंगी तो एहतिकाफ टूट जाएगा। तो इसलिए पहले से सोच समझकर ऐसा एरिया रखें कि जिसमें मतलब इससे बाहर निकलना ही ना पड़े। अब जैसे कि खाना पकाना तो बोले मैं किचन में जाऊं, तो मसला ये कि मस्जिद बैत की नियत उस जगह की जा सकती है, उस जगह के लिए जहाँ इबादत की जा सके। वॉशरूम में हम्माम में इबादत नहीं की जा सकती। इस तरह किचन का जो हिसाब किताब होता है उसमें भी कोई इबादत की नहीं जाती, ना कोई इबादत करता है ना नमाज़ें पढ़ता है ना। तो बहरहाल लेके किचन में भी न जाएं। अगर पकाना ही ज़रूरी है तो अगर पूरा कमरा मस्जिद बैत किया हुआ है तो वहाँ चूल्हा ले लिया जाए, अंदर में अंदर बैठ कर पकाए। ये भी हो सकता है कि कब्रे के बिल्कुल यानी दहलीज पर दरवाजे पर भले बाहर की तरफ हो वो फिना खारिज मस्जिद बैत वो चूल्हा रख ले या चूल्हे रख लें और ये मस्जिद बैत में बैठे बैठे इसको पकाए तो हाथ निकलने से उसका एहतिकाफ नहीं टूटेगा। ये भी एक सूरत हो सकती है। या जो काम मतलब बगैर चूल्हे के घर में बैठकर कर सकती हैं तो वो घर वो अपने मस्जिद बैत में बैठकर वो भले सब्जियां काटना वगैरह जो भी हिसाब किताब धोना करना ये उसी कमरे में करें, लेकिन ये जहन में रखे कि मस्जिद बैत को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें गंदगी ना की जाए बल्कि उसको साफ सुथरा और खुशबूदार रखा जाए। तो मजीद आपने ये भी पूछा कि शायद मिलने के लिए कोई मसला नहीं है, वो 10 दिन में अगर वो 10 दिन के लिए इत्तिकाफ में भले इस्लामी बहनें आए, महारिम आए,
बातचीत करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, बाद लोग इसको बहुत मुश्किल लेते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे अपने घर में रहती है ये वैसे रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है बाज़ पाबंदियाँ हैं उनकी, तो पाबंदी ज़रूरी है। रोज़ा भी इसमें ज़रूरी है। रोज़ा अगर मजबूरी से भी टूटा, बीमारी से भी टूटा, तो एहतिकाफ ये टूट जाएगा, फिर एक दिन का एहतिकाफ क़ज़ा करना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अल सुन्नत मस्जिद अक्सा किसने तामीर किया, और क्या उसको भी बैतुल्ला शरीफ की तरह कई बार तामीर किया गया है, या फिर एक ही बार तामीर की गई और अब भी वही तामीरात बाकी हैं? हज़रत सुलेमान अला नबीना वालेसलातो वस्सलाम ने वो जिन्नात को हुक्म दिया और जिन्नात के ज़रिए वो तामीर हुई। तो वाकई इतने इतने बड़े बड़े आज भी मतलब ये तारीखी असासा है, बड़े बड़े पीस हैं स्टोन के, पत्थर के, पहाड़ों के, जिसमें कहीं भी जोड़ आपको नहीं मिलेगा, या जोड़ है तो बहुत बड़े पीस के बाद, यानी बड़े से बड़ा पहलवान भी उसको उठा के शायद हिला भी ना सके, इतने बड़े बड़े पीस। नबी का मौजिज़ा है कि इन्होंने जिन्नात से काम लिया, हम तो नहीं ले सकते ज़ाहिर। ये मस्जिद अक्सा तारीखी मस्जिद है, बड़ी फजीलत वाली मस्जिद है। ये काबे मुअज़्ज़मा यानी काबे शरीफ की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद उस मकाम पर रखी। बुनियाद मैंने फाउंडेशन, जहाँ हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम का खैमा कैंप नस्ब किया गया था, लगाया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात शरीफ का वक्त आ गया, तो आपने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद यानी अपने सादतमंद बेटे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को इसकी तकमील यानी इसको कंप्लीट करने की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों की एक जमाअत को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही। अभी 1 साल का काम बाकी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आ गया। आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इसी तरह तशरीफ लाए। असा यानी स्टिक पर टेक फरमा कर खड़े हो गए। मलकुल मौत हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी मुबारक रूह कब्ज की। आप उसी तरह असा यानी स्टिक पर टेक लगाए रहे। पहले तो जिन्नों को रात की फुर्सत मिल भी जाती थी, अब दिन रात बराबर काम करना पड़ता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त खड़े ही रहते थे और इजाज़त मांगने की किसी में हिम्मत न थी। ना 4 साल भर तक एक साथ काम बराबर यानी कंटिन्यू काम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हुई। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब काम पूरा हो गया तो अब वो असा जो थी, असा को दीमक ने अपना काम किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। तो अब जाकर ये जिन्नात जो थे इनको पता चला और बाद में
तहकीक हो गई, पता चला कि ये तो साल भर से वफात पा चुके हैं। इस पर यह कि कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमुन अल-गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ से ये ज़ाहिर हुआ कि जिन अगर गैब जानते तो इस ज़िल्लत वाले अज़ाब के अंदर ठहरे ना रहते। यानी जिन्नात को इल्म गैब तो न था, ना है, ना होगा। तो ये अगर इनको इल्म गैब होता तो इनको 1 साल पहले पता चल जाता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। नबी का जिस्म मुबारक जो है वो तो मतलब गलता तो है नहीं, जिस तरह हमारे जिस्म जो होते हैं गलते हैं, सड़ते हैं, फटते हैं, तो नबी का जिस्म मुबारक सलामत रहता है। तो ये मतलब जिस्म सलामत और खड़ा हुआ देख कर ये समझते रह गए तो खड़े हुए, अब तो दिन रात खड़े हुए हैं, तशरीफ नहीं ले जा रहे। तो यूं मतलब है कि जिन्नात को पता नहीं चला, और इनको गायब होता तो ये 1 साल तक इतनी रात दिन की मशक्क़त और मेहनत में ना पड़ते। तो जो मतलब ये हाजिरात के जिन और लोग जिन्नों से मालूम करते हैं कि क्या होगा वगैरह, ये सब ऐसे ढकोसले। और ये मसला आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिन्नात से गुजरी हुई बातें पूछना ये भी हमाकत है, लेकिन आइंदा की बातें पूछना इनको हराम है। और अगर ये एतकाद है कि जिन्नात गैब जानते हैं तब तो ये काफिर हो जाएंगे जो पूछने वाले, क्योंकि जिन्नात गैब नहीं जानते, इल्म गैब इनके पास नहीं है। तो कुरान ने बिल्कुल साफ मना फरमा दिया कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। तो मुसलमान कुरान को मानता है। ये बात बातें या तो अंधेरे में तीर मारते हैं जो जिन होते हैं ये हजरात के, या तो वो जिन भी नहीं होता, ढोंग करते होंगे ये जो बाबा जी हैं, इस तरह के बात, या औरतें भी ये धंधे लेके बैठी होती हैं। तो ये हकीकत में मतलब वो या तो जिन होता नहीं है या जिन होता है तो वो झूठ बोल रहा होता है और ये तुक्के लगा रहा होता है। और पिछली बातें बात सही पड़ जाती है ना इसकी, तो लोग समझते हैं कि ये जानता है। पिछली बातें यूँ सही पड़ जाती हैं कि या तो ये खुद इनकी उम्रें बड़ी होती हैं, ये वहाँ अतराफ में रहता होता है, जानता होता है, तो इसने देखा होता है। एक सूरत तो ये, या ये कि हर जब भी बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक जिन, शैतान, शरीर जिनको शैतान बोलते हैं, तो ये पैदा होता है। इसको हमजाद बोलते हैं, ये फारसी लफ्ज़ है हमजाद। तो हमजाद लफ्ज़ मशहूर है, तो एक हमजाद उनके साथ होता है। हमजाद के माना ही ये साथ पैदा होने वाला। तो ये हमजाद से इनकी दोस्ती होती है जिन्नात की आपस में, जैसे हम लोगों की दोस्तियाँ होती है। तो हमजाद तो शुरू से जब से पैदा हुआ साथ ही साथ होता है। ये देखता रहता है कब सर फटा और कब बुखार आया और कब टांग टूटी और कब हाथ टूटा, या कब गुर्बत आई, कब दौलत आई, कब तंगदस्ती आई, कब बीमार ऐसा हुआ कि उम्मीद छोड़ दी घर वालों ने, ये सब ये देखता रहता है। तो ये बता देता है उस जिन को, वो जिन इनसे कांटेक्ट करके मालूम कर लेता है। तो जब इसको पता चल जाता है यूँ, और ये बोलता है कि ऐसा बीमार हुआ था कि उम्मीद छोड़ दी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया, फिर फुला जगह गए तो उसने दुआ की तो आप लोग ठीक हो गए, तो ये हो गया, तो ये दरख्त से गिर गया था तो टांग टूट गई थी। ये सब इसको ये बताता है और ये बताता, तो लोग फिर अंधे अकीदतमंद हो जाते हैं कि ये तो बुद्ध पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ जरूर होता है, ये शैतान के कदमों तक पहुंचा हुआ होता है, खुदा तक पहुंचा हुआ नहीं होता। खुदा तक पहुंचे हुए नबी होते हैं। नबी जो गैब की खबर देते हैं अल्लाह के बताए से, वो परफेक्ट होती है। और नबी के फयूज़ व बरक़ात से, फैज़ान से औलिया किराम भी गैब की खबरें देते हैं। ये अल्लाह पाक से नबी लेते हैं, नबी अपने गुलामों को देते हैं, है ना। तो ये इस तरह का मतलब सिलसिला है। तो इनमें जिन्नात जो है ये इनकी लाइन कट है, समझे, इनका कोई है नहीं कुछ। तो इसलिए कभी भी हजरात के जिन जो होते हैं ना, इनको नहीं पूछा करें। ये मेरे खिलाफ हो जाते हैं हजरात वाले, बुरा भला मुझे पता है, तजर्बा है पुराना, तो कोई बात नहीं।
मैं अल्लाह के बंदों तक सही बात तो पहुंचाऊं ना। अल्लाह पाक पर यकीन रखें, अल्लाह पाक पर ईमान लाएं, और जो कुरान कहता है आंखें बंद करके उसको मानना है, वरना फिर ईमान चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जाहिर है कि कुरान का इनकार तो मुमकिन नहीं, एक हर्फ का भी इनकार नहीं हो सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर किसी को हजरात पेश आता है और वाकई उसको यूँ लगता है कि ये अपने बस में नहीं होता, जिन्न आते हैं, तो वो इलाज कराए जिन्नात का, किसी बाबा जी से कांटेक्ट करें, वो उस जिन को भगाए, ताकि ये इस मुसीबत में ना पड़े कि लोग इसकी वजह से गुमराह हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, और बड़ी भीड़ लगती है, वो नजराने और शुक्राने और न्याजें चढ़ रही होती हैं, और पूरा ड्रामा होता है। ऐसा नहीं करना है। हाँ, मज़ारात पर न्याज चढ़ाना ये मना नहीं है। इसाले सवाब के लिए मज़ारात पर जो लोग इसको न्याज चढ़ाना बोलते हैं, तो वहाँ जो न्याज खिलाते हैं या अपने घर में खिलाते हैं इसाले सवाब के लिए, मौला अली का आज हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी न्याज हुई थी, और आपने हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन ने अगर शुरू में देखा हो तो देखा हो। जी दिखाया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें वो थाल आया था आपके पास, वो मिट्टी का, तो हमने अर्ज़ की थी कि ये इसाले सवाब फातिया वगैरह का। तो मैंने वजाहत कर दूँ, कल जाकर मेरी वो बातें सुनकर कोई ये ना समझे कि ये न्याज का मना कर रहा है। ये जिन्नों पर नहीं चढ़ाना है, जहाँ जिन्नात के हजरात होते वहाँ नहीं जाना। और जो ऐसे लोग हैं खौफ खुदा वाले, अगर अब तक धोखे में, तो तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, और वो ये मेले जमेले ना करें और अल्लाह से तौबा करें और जिन्नात का इलाज करें हजरात। और अगर खुदा न खाता खुद ही कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी तरकीब से, तो इसको बंद करके तौबा कर लें। जिन्नात के इलाज कराने जाने में कोई आजमाइश होने का कोई खदशा है? देखो ये बड़ी आजमाइश है इस वक्त, जो इसकी वजह से उम्मत को गुमराह कर रही है। ये इलाज कराने में तो फ़ायदा तो हो जाता है ना। देखो कैंसर का इलाज भी, कैंसर का मरीज़ भी इलाज नहीं छोड़ता। जी जी। जबकि मशहूर है कैंसर का इलाज नहीं है, ये गलत मशहूर है। अल्लाह ने जो भी बीमारी उतारी है उसका इलाज हो जाता है, इसका इलाज भी उतारा है। सिवाय बुढ़ापे के और मौत के, इन दो चीज़ों के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मौत का इलाज नहीं है, बुढ़ापे का भी नहीं है। तो कैंसर के मरीज को डॉक्टर बोलते हैं इलाज है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन मरीज बच जाता है। कैंसर के तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं दावत इस्लामी के, उसमें आपको ऐसे कई मदनी बहारें मिलेंगी कि कैंसर के मरीज ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कोई मायूसी नहीं है। कैंसर अगर किसी को डिक्लेयर है, अब टेंशन ना लें, इलाज जारी रखें। वैसे मौत मरहक है तो सभी को आनी है। कैंसर वाला बिस्तर पर पड़ा रहता है और नौजवान ठा करके स्कूटर पर टकरा जाता है, सर के बल गिरता है, बेचारा फौत हो जाता है। रोजाना कितने नौजवान मर रहे हैं। तो मौत तो सबको आएगी, जवान भी नहीं बचेगा, बुढ़ा भी नहीं बचेगा, बच्चा भी नहीं बचेगा, मर्द औरत सब मरेंगे। जो पैदा हुआ उसको मरना तो पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। मैं आपको रमजान के दो चीज़ें बताता हूँ। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दूसरा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।
बच्चों का मस्जिद में बातें करना कैसा है? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। जब मस्जिद में बच्चे बातें करते हैं तो इनको निकाल देते हैं, हालांकि खुद मस्जिद में बातें कर रहे होते हैं। ये आदमी जो बातें कर रहे होते हैं, अब इसमें हर एक दुनिया की बात कर रहा हो जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है किसी को कोई मसला समझा रहा हो, हदीस शरीफ सुना रहा हो। बच्चे कोई काम की बात तो करते नहीं है, अड़ाउड़ी करते हैं, शोर करते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। तो बच्चों को तो मस्जिद में शोर करना नहीं चाहिए, बस ऐसे बच्चों को मस्जिद में आने भी नहीं देना चाहिए। आ गए तो बेला फुसला कर घर भेज देना चाहिए, मगर बच्चों को झाड़े नहीं, डांटे नहीं, ये कुछ भी है। मतलब ऐसा ना कि मस्जिद से हमेशा के लिए इसका दिल टूट जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये आया है कि क्या सजदे में दुआ मांगने से जल्दी कबूल होती है दुआ? जी हाँ, सजदे में बंदा रब के ज्यादा करीब होता है, इसलिए दुआ कबूल होती है। मोहम्मद अशरफ भाई सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग सैयद ज़ादों को बुरा भला कहते हैं, तो उनको कैसे समझाएं हम? हर एक सैयद जो है ये औलाद किसकी है? देखें, अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। और अगर दाना खासा किसी सैयद साहब का अमल जो है वो नहीं है, मतलब है ना कि शरीयत के मुताबिक, तब भी उसकी निस्बत तो सलामत है ना, है तो वो सरकार की औलाद में से। फिर ये कहना कि वो माज़ अल्लाह के सैयद ने ऐसा किया, ये तो और भी बुरा है। आपका बेटा हो, भले कैसा ही हो, शरारती हो या मार पिटाई करता हो, तोड़ फोड़ बचाता हो, और कोई कहेगा कि यार फलां का बेटा यार बड़ा शरारती है, तो आपको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो जो सैयद है, जब इसको कोई बुरा कहे सैयद कहकर, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये अच्छा लगता होगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे, तो किसी ने, कोई सैयद ज़ादा वहाँ से गुजरा और उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का ये मतलब कर्रो फर शान शुकत देखी, तो उन्होंने कहा कि देखो ये आप तो मतलब आपके यानी बाप दादे तो मुसलमान भी नहीं थे, आगे से आपको तो मौज लगी हुई है। आपने फरमाया कि मैंने आपके बाप दादाओं की पैरवी की, तो आज मुझे ये इनाम मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि आपने मेरे बाप दादाओं की पैरवी की, उनकी तरह के अमल किए, तो आज आप
क्यों ये इन्होंने कहा, और फिर ये बात आई गई होगी, चले गए दोनों। अब रात सोए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, तो इन्होंने मुतख़ाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं थे और कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि तुमने मेरे बेटे को इस तरह कहकर सही नहीं किया। बेकरार हो गए। सुबह ढूंढने निकले उस सैयदजादे को ताकि उनको राजी करें। सैयदजादे सामने से आते मिले, जब आप जा रहे थे तो ढूंढने के लिए मुलाकात हुई, तो आपने से माफ़ी तलाफ़ी की और अपना ख्वाब सुनाया। तो सैयदजादे ने अर्ज़ किया, कहा कि मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था कि नाना जान ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और मुझे तंबीह की, फरमाया कि तुम अपना किरदार दुरुस्त रखो। तुमने अगर अपना किरदार दुरुस्त रखा होता, अमल अच्छे होते तुम्हारे, तो कोई तुम्हें क्यों ऐसा कहता। तो इसमें बहुत समझने का है। सैयदों को जो कुछ कह देते हैं कमज़ोर बातें, उनको भी समझने का है, और सादात किराम को भी इसमें तारे का मदनी फूल है कि दोनों फरीक जो है ना, ये तुम्हारा लेके मेरे को तो आला हज़रत का ये शेर बहुत पसंद है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो हमने तो सैयद के किरदार पर नजर डालनी नहीं है, हमने तो इनके हसब नसब को देखना है कि ये औलाद किसकी है। हमारी इसी में आफियत है, बचत इसी में। सादात किराम को मदनी फूल मौजूद, इनको भी ऐसा अंदाज इख्तियार करना है कि कोई ऐसी बात, कमजोर बात इनके बारे में ना करे। मस्जिद में हो, नमाजें पढ़ें, सुन्नतों पर अमल करें, दाढ़ी मुबारक सजाएं, और मतलब जो भी कारोबार मामलात में ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि लोग मतलब कुर्बान होने लगे। कोई क्यों कमजोर बात किसी सैयद के बारे में कहे, मौका ही क्यों दिया जाए किसी को बोलने का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर कुछ बताएंगे, ये आज क्या ये खामोशी खामोशी के साथ हो रहा था, क्या ढूंढ क्या रहे थे आप, ये तो बताएं। और ये मस्जिद का हिस्सा था जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ ना, इस वक्त तो वो सोफा और ये तो ये फर्श है मस्जिद का। तो इसमें मैं आ जाता हूँ मौके मौके से, यही हूँ ना आजकल रमजान शरीफ में। मेरी नजर पड़ी एक बाल के गुच्छे पर, छोटा सा गुच्छा था, तो मैंने हाथ डाला तो हाथ से शापर निकाली, तो कचरा डालने के लिए रखी थी मैंने वो मस्जिद में से चुनने के लिए। तो फिर वो मैंने वो बाल का गुच्छा डाला, तो इतने में सही भाई आ गए इसका बना लूं। तो मैंने कहा मेरे सारे काम नुमाइशी होंगे। अब ज़ाहिर वो कहे नहीं मतलब सीखने का मिलेगा वगैरह, या हमारी कुछ बातचीत, ठीक है बताओ। अब वो फिर मैंने मजीद वो ढूंढना शुरू किया, और ये
क्लिप बना, मुझे मिलते रहे कुछ ना कुछ, अब आ जाते हैं कुछ ना कुछ कहीं से इधर उधर से बाल और ये तिनके और कुछ, तो ये है इसका किस्सा। अब मेरे जहन में आ रहा था कि आज है भी जुमा, रमजान का महीना है, अजर बढ़ जाता है, जुम्मे की 1 नेकी 70 नेकी के बराबर, यूं मतलब है लगा मौका बहुत अच्छा। सुबह का टाइम था और ये इधर माशाअल्लाह हमारे मोतकिफिन आराम फरमा रहे थे और ढेर सारा, मैं ये मंजर थोड़ा मौका मिलता है तो जियारत करता हूँ मोतकिफिन की। फिर ये जाग जाते हैं ना, कोई कोई जाग रहे होते हैं, बातों को थोड़ा नींद जल्दी, तो फिर ये हाथ ले रहना शुरू करते हैं। ये भी एक मंजर होता है, कोई लेटे लेटे हाथ दे रहा है, कोई बैठ के हाथ दे रहा है, ये मजे का मंजर होता है। ये नहीं बना लिया जी इसलिए मैंने ये नहीं बना लिया। नहीं तो ये उस वक्त तो नहीं, मतलब वो उस वक्त यानी इस अंदाज से बनाया था कि ये मतलब ना देखें, शायद मुश्किल था कोई, वैसे इससे कुछ देर पहले यानी चंद मिनट पहले वो डर लग गया था, वो आना शुरू हो गए थे और कोई अपने अपने हिसाब से चंद बैठे हुए थे, वो लहरा रहे थे हाथ। तो ये भी देखा मैंने, लेटे लेटे भी लहराते हैं, नीचे मत नहीं करते। तो खैर माशाअल्लाह ये बस रौनक हैं और बाज़ औक़ात फिर दिल उदास होने लगता है कि अनकरीब ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल के मस्जिद की सफाई करना ये कार्य सवाब है। अब देखो मुझे ये देखते देखते ये मिला, इतना बड़ा पीस, ये हमारे मदनी चैनल वालों के काम करते करते ये कहीं से गिर गया होगा या फारिग हो गया होगा, तो पीछे मस्जिद की उसमें आ गया होगा या इधर उधर से लहरा कर हवा से आ गया हो। लेकिन हमारे हवा चलती नहीं है, बंद है, पैक है, एसी चल रहे होते हैं। खैर तो ये मतलब है, हदीस पाक भी सुने। अब इसकी जो फजाइल है कि फैजान नमाज पेज नंबर 239 239, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रहमत निशान है, जो मस्जिद से तकलीफ दे चीज निकाले अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। एक और ये इब्ने माजा जिल्द अव्वल पेज नंबर 419 हदीस नंबर 757, दूसरी हदीस से पाक, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सफाई, मस्जिद की साफ सफाई करने वाली एक खातून की वफात के बाद उसके बारे में गैब की खबर देते हुए फरमाया, मैं इस मस्जिद से गर्दो गुबार यानी धूल मिट्टी साफ करने की वजह से जन्नत भी देख रहा हूं। हवाला मुअज्जम कबीर जिल्द 11 पेज नंबर 190 हदीस नंबर 11607। यूं मस्जिद की सफाई करने में भी फजाइल है और मस्जिद को साफ करना चाहिए, बड़े यानी कि सादत की बात है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिनसे बन पड़े वो अपने साथ कोई शापर वगैरह रख लें, मशवरा है कि बहुत सारे बाल उड़ रहे होते हैं साहबाइयों के, फिर उड़ के वो गुच्छा बन जाते हैं और दीगर कचरा वगैरह, और अपना बाल गिरा तो ये मस्जिद में फेंकना नहीं है, कोई जर्रा भी फेंकना नहीं है, उठाकर अगर शापर नहीं तो जेब में रख लें। और ये भी याद रखें कि मस्जिद का जो कचरा उठाया तो वो जिस तरह आम हम डस्टबिन खाली कर दें उधर कचरा कुंडी में, तो ऐसा नहीं, मतलब इसको साफ सुथरी जगह पर अदब की जगह पे डालना होता है मस्जिद के कचरे को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किए गए, यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो
اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بلا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ حوالہ جامع الترمذی ابواب فضائل القرآن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمایا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مرشد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں اسلام لائے اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ ارشاد فرمائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیاری پیاری ادائیں. اور پھر ہمارے بچوں نے آج اسید اور حبیبہ بھائی نے بھی کوئی حدیث پاک سنائی. ماشاء اللہ. اور یہ بچوں نے سوال بھی کیا ہے کہ حضرت مولا علی کی عمر شریف کتنی تھی جب یہ ایمان لے آئے؟ اس وقت عمر شریف کے مختلف قول ہیں. 7 کی بھی بتائی گئی ہے، 7 سال کے تھے یا 10 سال کے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ ہے کہ یہ فائنل ہے اس پر کہ بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے تھے. حضرت مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بڑوں میں، اور خواتین میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ ایمان لائی تھی سب سے پہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج حیدر کرار کمپیوٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. چلو ایک دو سوال کے بعد ان کو لے لیتے ہیں. جی بہتر. احمد رضا بھائی سوال کر رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر تسبیح درود شریف پڑھنے کے لیے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی ہے تو کیا اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میں تو یہ اضافی چیز ہے نا، مناسب نہیں ہے. البتہ ناجائز بھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. نہ وہ توجہ بٹتی رہے گی، دیکھنے والے کو بھی تعجب ہوگا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ مولا علی کا جو لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دے. اللہ پاک نے ان کے چہرے کو عزت بخشی، کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی. کنار اقدس میں نے گود شریف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں. ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا. اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا. حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 28 صفحہ نمبر 436 بتغیر.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हैदर कर्रार कंप्यूटर। इनका एक पैकेज है, आइए वो भी दिखाते हैं तैयारी का। मेरा नाम शकील गजनफर अली है। मदनी चैनल किड्स की टीम ने दारुल मदीना गुलशन कैंपस में ऑडिशन किए और मेरे बेटे को हैदर कर्रार कंप्यूटर के लिए सिलेक्ट किया। ये मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा अमीर अहले सुन्नत के सामने हैदर कर्रार कंप्यूटर बनकर पेश होगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद तरकाम अली है। मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। मैं इस मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत के सामने हैदर कर्रार कंप्यूटर बनकर पेश होऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, तो बड़ी सज धज के साथ आए हुए। माशाअल्लाह। इमामा भी पहन लिया, सैयद भी हैं। सैयद भी हैं, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हैदर कर्रार कंप्यूटर। ओह, जोश में भी है। नाम तो आपने बता दिया, उम्र भी आपने बता दी, अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 6 साल है। सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूँ, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं और मैं अपनी गलतियों को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बर्थ यानी विलादत कब हुई? मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 13 रजब को हुई। सैयदर औलिया मुर्तज़ा मुर्तज़ा मुत्तकी पासा मुर्तज़ा मुर्तज़ा काइफे किबरिया मुर्तज़ा मुर्तज़ा। फदान मुश्किल कुशा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ टाइटल्स यानी अलक़ाबात बताइए और हैदर कर्रार का मायना भी बताइए। आप रज़ियल्लाहु ताला के अलक़ाबात मुर्तज़ा, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार। हैदर कर्रार के मायने है ऐसा शेर जो पलट पलट कर हमला करने वाला हो। उसने लक़ब शहंशाह से पाया, जो हैदर कर्रार है, मौला है हमारा। माशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली। माशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किल कुशा कहने की वजह बताइए। मुश्किल कुशा के मायने हैं मुश्किल में मदद करने वाला, मुश्किल हल करने वाला। आज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल में मदद फरमाने वाले हैं, इसीलिए आपको मुश्किल कुशा कहा जाता है। माशाअल्लाह। भीख लेने के लिए दरबार में मंगता तेरा, लेके कशकोर आ गया अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। यानी मुश्किल कुशा जारी रहेगा इंशाअल्लाह वजल। यानी मुश्किल कुशा का माना है मुश्किल हल करने वाला, मुश्किल में मदद करने वाला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुश्किल में मदद फरमाने वाले हैं, इसी वजह से आपको मुश्किल कुशा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हैदर कर्रार कंप्यूटर। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया? एक कौल के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले आप ही हैं। माशाअल्लाह। बड़ी तैयारी करके आए हैं। क्यों हैदर कर्रार कंप्यूटर तैयारी करके आए ना बड़ी? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी इनका जिरगाम के माना भी शेर होता है। हैदर कर्रार माने पलट पलट कर दुश्मन पर हमले करने वाला। औलाद भी इनकी हैं, बहुत सारी फजीलतें आपके साथ शामिल हैं। हैदर कर्रार कंप्यूटर, ये बताइए कि इस्लाम के चौथे खलीफा, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी अहादीस मरवी हैं?
آپ رضی اللہ تعالیٰ سے 586 احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل، والدین اور سب پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ علی مرتضی شیر خدا ہے، ان سے کچھ حبیبی کبریا ہے۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ پاک علی کی ہن کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر لے۔ سبحان اللہ، اے اللہ پاک علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ پاک کی اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کرامت سنائیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سواری پر سوار ہونے لگتے ہیں تو گھوڑی کی رکاب میں گھوڑی کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے ہیں اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پاک مکمل فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہونے لگتے اور گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک ختم فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دونوں طرف مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی میرے صاحب کیا فرما رہے تھے؟ یا علی ماشاءاللہ۔ وہ جو رکاب جو ہے نا، جیسے کہ اسکوٹر ہوتی ہے اپنی، دونوں طرف پیڈل ہوتے ہیں نا، تو دو طرف رکابیں لٹک رہی ہوتی ہیں گھوڑے پر سواری کے لیے، تو یہ نہیں اس کو ہم پیڈل، اردو میں رکاب، بلکہ عربی لفظ ہے رکاب، تو یوں ایک پیڈل پر سمجھو کہ پیڈل میں زیادہ سمجھ آئے گی، رکاب میں شاید کنفیوژن ہوا ہوگا، تو ایک پیڈل میں مبارک قدم رکھتے تو تلاوت شروع کرتے، اور اب اس میں دوسرا پیڈل، جیسے اسکوٹر پر یوں کر کے سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑے پہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں سوار، یوں کر کے، تو ایک مبارک پاؤں رکھا، تلاوت شروع کی، اور دوسرا پاؤں یوں کہ سیکنڈ بھی 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے، اس میں وہ دوسرے پیڈل میں پاؤں رکھنے کا اس 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے پیریڈ میں پورا قرآن کریم آپ تلاوت کر لیتے۔ تو یہ ایک ممکن صورت نہیں ہے لیکن کرامت ہے، حضرت علی کی کرامت ہوتی ہے ایسی ہے کہ جو مطلب عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو۔ جی اپنے حیدر کرار کمپیوٹر کوئی نعرے بھی آپ لگائیں گے نا؟ عاشق مصطفیٰ مرتضی خائف کبریا مرتضی اپنے رب کے شیر ہیں مرتضی والد حسین ہیں مرتضی خیر ہی خیر ہے مرتضی آل کا واسطہ مرتضی بتانے مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ حیدر کرار کمپیوٹر کا بھی کیا کہنا، بڑی تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اس مدنی منع کے لیے
2600 روپے انشاءاللہ پیش کی جائیں گے اور ان کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ عز و جل مدنی باکس پیش کیا جائے گا. امیر اہل سنت آج الحمدللہ یہ حیدری کرار کمپیوٹر بن کر یہاں پر تشریف لائے. ان کے والد صاحب کو شکرانے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مدنی مشورہ عطا فرمائیں. خود ہی فرمائیں گے کیا کیا کرنا ہے. اب ان کے پاس پوری دعوت اسلامی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ ارشاد فرما دیں. اب مجھے بلینک چیک دیں گے نا تو مسئلہ ہو جائے گا. خود ہی عطا فرما دیں. جولی پھیلا دی ہے آپ کے سامنے. ویسے امیر اہل سنت آپ کا دل کس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ مطلب جو اس وقت جو ٹاپک ہے یہ اس میں تو خوش اسی صورت میں ہوگا نا کہ میں ان کو با امامہ دیکھوں, با زلفیں دیکھوں, مدنی قافلے کا مسافر دیکھوں, چاند رات کا اعلان سنوں کہ میں ایک ماہ کے لیے چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. تو اس لیے بلینک چیک میں تو یہ آزمائش پہ آ جائیں گے. تو اس لیے یہ خود ارشاد فرما دیں کہ یہ کیا کیا دیں گے مجھے. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کی پابندی سختی کے ساتھ, اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنی نیت پہ عمل کرنے کی. دوسرا سمجھ نہیں, ہفتہ وار اجتماع تو سمجھ آ گیا. دوسرا کیا فرمایا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ایک اگر تحفہ یہ قبول کر لیں شاہ صاحب. لبیک. مدرسۃ المدینہ بالغان یہ اپنے علاقے میں جو ہمارے رات کو مدرسے لگتے ہیں. جی جی رات کو ہمارے مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے, اس میں شرکت کا فرمانا ہے شہزادہ حضور. عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ بس 40 منٹ کا ہوتا ہے دورانیہ. کوئی مسئلہ انشاءاللہ بالکل حاضر کریں. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص مسجد میں پہلی یا دوسری صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے پیچھے بھی مزید صفیں قائم ہوں بنی ہوں اور دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ نابینا ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ صفیں چیرتا ہوا پیچھے نہیں جا سکتا, تو اس کے لیے اس کا کیا حل ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. میرے لیے, میرے والدین اور اہل خانہ کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. واقعی یہ ہے تو آزمائش صف تو قطع ہوگی, کٹے گی, ٹوٹے گی. لیکن اب یہ کہ اگر یہ جاتے ہیں تب تو وہ ادھر ٹکرائیں گے ادھر ٹکرائیں گے, لوگ شاید اپنی نمازیں بھی توڑ دیں اور مسائل ہو جائیں. اس لیے بامر مجبوری وہ وہیں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں, جبکہ رش جا نہیں سکتے. یہ ایک صورت ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت ہمارے علی سے ہیں, کچھ علوی خاندان کی وضاحت فرماتے. ہم ہیں علی کے ہمارا علی, علی 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 مولا علی, علی علی مولا علی. ہم ہیں مولا علی کے اور مولا علی ہمارے, اس کا پوچھ رہے ہیں. تو آسان تو ہے. یہ پورا اچھا علوی وہ ہوتے ہیں کہ جو حضرت بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تب مولا علی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. دوسرا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی, اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ جو آپ سے اولاد ہوئی ان سے جو سلسلہ چلا بیٹوں سے, تو وہ علوی کہلائے. یہ مطلب علوی کے معنی ہے. سید اور علوی میں فرق ہے. بی بی فاطمہ کے شہزادوں سے جو اولاد چلی
सिलसिला वो सैयद कहलाए, और मौला अली की बस दूसरे उससे जो औलाद चली तो वो अलवी कहलाई। और हम अली के, अली हमारे, मौला अली हमारे, तो ये तो वो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, और हम इनके गुलाम हैं। तो यूं वो हमारे आका, हम इनके हैं, हम इनके गुलाम हैं। हाँ, मौला कहने में कोई मुश्किल नहीं है, लोग घबरा जाते हैं। अब मस्जिद के इमाम साहब को तो मौलाना बोलते हैं, दाढ़ी वाले को बोलते हैं मौलाना, मौलाना साहब। मौलाना के माना होते हैं हमारे मौला। तो एक छोटी सी दाढ़ी वाला होता है उसको भी लोग मौलाना बोलते हैं। तो हजरत अली जन्नती सहाबी और इस मुसलमानों के चौथे खलीफा, तो इनको मौला कहने में कोई हर्ज नहीं। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मन कुंतो मौला हूँ फअलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। या मुर्शिदी, यहाँ पर भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज तो फैदान मदीना के अंदर मोतकिफिन की बहारें ही बहारें हैं। यहाँ से चंद इस्लामी भाई आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि किसी शख्स की ज़कात 2 लाख बनी, उसने वो रकम अलग कर ली और पूरा साल थोड़ी थोड़ी बांटता रहा, क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर एडवांस में किया तो जायज़ है। और अगर 2 लाख अब ज़कात फर्ज हो चुकी है, ज़कात बनी जैसा आपने कहा, और अब थोड़ा थोड़ा ये साल भर बांटेगा तो बिला उज़्र ऐसा करेगा तो गुनाहगार है। उज़्र इस सूरत में कि जैसे हकदारी नहीं मिल रहा बिलफर्ज, वरना ये कह पहले बांटे बोले एडवांस में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़कात के मुस्तकीन से क्या मुराद है? क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को गरीब और मिस्कीन और गरीब बोल रहा है। अब मुस्तहिक जो होता है, हकदार, जिसको ज़कात देना जायज़ हो, वो एक तो एक हाशमी ना हो। सैयद सादात भी हाशमी है और अलवी भी हाशमी है, अलवी भी हाशमी है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद भी हाशमी है, अब्बासी, आपने सुना होगा। तो इस तरह मतलब है कि 5 है। अबू लहब की औलाद हाशमी नहीं है क्योंकि काफिर था। अलबत्ता अबू लहब खुद वैसे उसमें था ना, बनु हाशिम में, लेकिन ये कि इसकी औलाद अगरचे मुसलमान हो, हाशमी नहीं है। और मजीद है कि साहिब निसाब ना हो, और बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते, न गैर इन्हें दे सके, न एक हाशमी दूसरे हाशमी को, न हाशमी भी हाशमी को ज़कात नहीं दे सकता। बनी हाशिम से मुराद हज़रत अली और जाफ़र और अकील और हज़रत अब्बास और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। इनके अलावा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इआनत ना की, यानी ताउन ना किया, मसलन अबू लहब, कि अगरचे ये काफिर भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, मगर इसकी औलादें बनी हाशिम में शुमार ना होंगी। और ये जो बताया कि मिस्कीन और ये आजकल जो ये तरह तरह के लोग, तो ये आमतौर पर प्रोफेशनल होते हैं, ये रमज़ान शरीफ में ही नज़र आते हैं। और दाढ़े के दाढ़े ये गालिबन अंदरून सिंध से आ जाते हैं और इधर अतराफ से आते हैं, शहर के। ये कराची की बात करूँ, कराची में ये बड़े शहरों में ज़्यादा जहाँ खैरात मिलती है, ख़ासकर जो लोग ज़्यादा खैरात बांटते हैं, इनमें मेमन कौम ज़्यादा बांटती है खैरात।
تو میمنوں کے علاقے میں یہ سونے نہیں دیں گے، اتنا ہی آتے رہیں گے، چیختے رہیں گے. تو یہ جو پتہ ہے جس کا کہ پروفیشنل، اس کو تو زکوٰۃ کے حوالے سے عام خیرات بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کنفرم پتا ہے کہ یہ واقعی ہے پروفیشنل، تو اس کو تو دینا گناہ ہے، کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے اور اب اس کی ہم مدد کریں. سب دینا بند کر دیں گے تو آپ ہی محنت مزدوری کرے گا. اب ایک عام جو غریب غربے ہوتے ہیں، جو جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس پر غور کرے، تحری بولتے ہیں اس کو، اچھی طرح غور کرے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں. اب اگر ذہن جمتا ہے کہ یہ حقدار ہے، اور اب حقدار سمجھ کر اس نے زکوٰۃ دے دی، تو زکوٰۃ ہو جائے گی. بھلے بعد میں پتا چلا کہ تو حقدار نہیں تھا، تب بھی ہو جائے گی. اور اگر غور نہیں کیا اور دے دی زکوٰۃ، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ تو حقدار نہیں تھا، تو اب یہ کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس لیے وہ غور کیا کریں، بس اب واقعی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ جو دھاڑے کے دھاڑے نکل رہے ہوتے ہیں، دودھ ملیدہ، اللہ ہی دے گا کر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ 27ویں رات کو خاص کر. پھر عید کے دن بھی یہ پوڑیاں لے کر بجا رہے ہوتے ہیں بیگل اور کیا کیا، اور بالکل صحیح سلامت صحیح الاعضاء اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اور قوم دے رہی ہوتی ان کو، اور نہ دیوا ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت، ہمارا یہ جو پہلا کلمہ ہے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا تذکرہ ہے، تو اسے کلمہ توحید کہنے کی کیا حکمت ہے؟ کلمہ طیبہ ویسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اول کلمہ طیب، تو اس میں توحید کا تذکرہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ ایک ہونے کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. چوتھے کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں نا. اصل میں توحید کا کہنے میں کوئی حرج نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے پہلے جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر اس چیز کا پورا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے قل هو اللہ احد پڑھی، حالانکہ قل هو اللہ احد فقط نہیں ہے، اس کے آگے اور بھی 3 آیتیں موجود ہیں، لیکن فقط پہلے حصے کو وہ سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد پڑھنا کہتے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھی، حالانکہ وہ پوری صورت ہوتی ہے جسے وہ پڑھتا ہے. بلکہ اتنا کہتے ہیں الحمد شریف پڑھی، میں نے الحمد پڑھی. اس کو پہلے جز کے ساتھ کسی چیز کا نام رکھنے کو بولتے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا تو اس کا خاتمہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. حالانکہ اس سے مراد فقط لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس میں اگر ہم توحید کو یوں مان رہے ہیں کہ اللہ پاک ہی معبود ہے، اسی کو واحد ماننا، معبود ماننا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کلمہ توحید ہی کا فقط نام دیا جائے. ایک ہی تو معبود ہے عبادت کے لائق. بہرحال ایک ابھی اس کو کلمہ توحید کہتے ہوں گے، ہم نے تو بچپن میں یہی رٹا تھا، اول کلمہ طیب، یہ 6 کلمے، پاک، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید. تو یہ اب توحید کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. 5واں کلمہ استغفار کہلاتا تھا جی، اور 6ٹھا کلمہ کلمہ رد کفر. یہ کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا کلمہ جو ہے نا قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں ہے، 2 جگہ پر ہے. لا الہ الا اللہ کہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اسی طرح دیگر کلمے بھی پورا کلمہ قرآن کریم میں نہیں ہے. سب جو کہتے ہیں نا صرف قرآن کی بات مانیں گے تو وہ قرآن سے یہ کلمے کی ترتیب ثابت کریں گے تو پھر آ کے بات کریں گے ان سے. یہ کلمے مسلمانوں میں عام ہے، تو یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ کلمے جو ہے نا یہ بعد میں یہ ترتیب
पाए हैं। इसी तरह ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये तरतीब बाद में पाए हैं, तो दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या मुर्शिदी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और इनके जहनों में कुछ सवालात हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। या मुर्शिदी, ये इरशाद फरमाइए कि बाज़ औक़ात हमारी टीचर किसी बच्चे से कहती है कि जब तक तुम्हें दो लगेंगी नहीं तो तुम सही से नहीं पढ़ोगे, तो या मुर्शिदी ये इरशाद फरमाइए कि अब बच्चों को मार खाने से दिमाग ज़्यादा चलता है? मार खाने से दिमाग ज़्यादा चलता है। अब तो मारने पर तो हमारे यहाँ तो पाबंदी है, दो लगेगी क्या, एक भी नहीं, आधी भी नहीं लगेगी। और ये दो लगेगी कहने में वाकई दो लगती नहीं होगी, खाली वो धमकी देती होंगी। तो बहरहाल लेके मार के डर से तो जानवर भी भागता है, समझे। ये जो गधा गाड़ी वाले होते हैं ना, वो डब्बे में कंकरियां भर के रखते हैं, थोड़ा पिचका देते हैं डब्बे को, वो खड़खड़ खड़खड़ बजाते हैं, गधा रेस करता है, दौड़ रहा होता है बाजू। तो इस तरह मतलब है कि डराने से ज़हन तो चलता है, सीरियस लेता है बंदा के यार अभी पड़ेगी, अभी लगेगी, तवज्जो देते हैं, तवज्जो ज्यादा देता है। फिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए देखते हैं बच्चे क्या सवालात लाए। या मुर्शिदी, यहाँ से डर लगे तो क्या करना चाहिए? समझा नहीं, दोबारा बेटे, दोबारा थोड़ा रुक रुक के और अच्छी तरह ऊंची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मुर्शिदी, जिन्नात से डर लगे तो क्या करना चाहिए? आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। ये भी ना आता हो तो क्या करना चाहिए? हाँ भाई, ये ना आता हो तो क्या पढ़ना चाहिए? आयतुल कुर्सी याद करनी चाहिए। लेकिन अभी तो डर लग रहा है ना, तो चलो याद करना शुरू कर दे। जब जिन्नात सामने आ जाए तो उस वक्त तो याद भी नहीं आएगी, शायद याद होगी तब भी। अल्लाह करीम हमें आजमाइश में न डाले। तो आयतुल कुर्सी जो है ना, बल्कि सूरह बकरा की कोई भी आयत हो, ये भी जिन्नात को भगा देगी इंशाअल्लाह। सूरह बकरा में बहुत अल्लाह पाक ने तासीरात रखी हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये भी सूरह बकरा की ही आयत है और ये जामे दुआ है, बहुत उम्दा दुआ है। अच्छा, ये चूहा सामने आया, डर लगा, उसको देखा, भागे, लाल बेग आ गया, भागे, छिपकली नजर आ गए, भागे, तो ये डर लगा क्योंकि नजर आया। जिन नजर आया नहीं है फिर भी डर लगता है। और हमें जब जिन से डर लग रहा तो कोई सामने चीज़ है ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं है। कोई किसी बच्चे ने भी ये नहीं कहेंगे कि हमें नज़र आ गया था और हम डर गए थे, ऐसी खौफनाक शक्ल थी। तो एक चीज़ को देखा नहीं है फिर भी बेचारे डरते क्यों हैं? असल वो जिन दुनिया में इसका वजूद है, जिन है ये तो मानना पड़ेगा, वरना तो काफिर हो जाएंगे जो भी नहीं मानेगा। क्योंकि कुरान करीम में इसका कई जगह पर तस्करा है, यहाँ तक कि एक पूरी सूरत है, सूरह जिन उसका नाम है। जिन मखलूक है, मुसलमान भी होते हैं इसमें, गैर मुस्लिम भी होते हैं इसमें, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली ये भी होते हैं। फिर मुसलमान तरल होते हैं इसमें, अच्छे नेक मुसलमान भी होते हैं, बदमज़हब बदअक़ीदा भी होते हैं, गुस्ताख भी होते हैं, तरह तरह के इसमें देखिए ये होते हैं। और इंसानों से इनकी आबादी ज़्यादा है, 9 गुना इंसानों से ये 9 गुना होते हैं। यानी एक इंसान है तो 9 जिन है, इतने ज़्यादा ही है। इनमें भी सब होते हैं, हर तरह के होते हैं, और सब शरारती नहीं होते कि ये डराएं और चिमट जाएं और परेशान करें, ऐसा नहीं होता। जैसे इंसानों में कोई कोई लुटेरा होता है, चोर होता है, किल्लर होता है, मारधाड़ करता है, और लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं करती। तो जिनकी भी अक्सरियत ऐसा नहीं करती, वरना तो हम सारे यहाँ बैठ भी नहीं सकते। इधर अतराफ में न जाने कितने होंगे, तो ये तंग नहीं करते सब।
तो इस तरह मतलब ये कि डरना तो नहीं चाहिए। कुरान करीम में वइया या फरहबून, और मुझ ही से डरो। तो हम काश अल्लाह से डरने वाले बने। अल्लाह का डर, यूं समझो अल्लाह का डर निकला तो दुनिया भर के डर हमारे अंदर घर कर गए। अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी डर और सही माने में खौफ अता कर दे। एक और रिवायत मुझे याद आई जो शरह सुदूर में, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो जब मर के कब्र में जाएगा तो हर वो चीज उसको डराने के लिए पहुंच जाएगी जिनसे वो अल्लाह के सिवा उनसे डरा करता था। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं, उसी की पनाह में आते हैं कि अपना खौफ दे दे। ये डरने से मुराद ये नहीं, यूं तो हर मुसलमान कुछ ना कुछ डरता ही है। कोई मुसलमान ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके दिल में बिल्कुल ही खौफ ना हो। ये बोला जाता है कि हाँ इसको खौफ नहीं है, हकीकत में कुछ तो खौफ होता है। मिसाल के तौर पे इसने ईद की नमाज, जुम्मा नहीं पढ़ता, ईद में आ जाता है, ये क्यों आता है भाई? कुछ तो अल्लाह का खौफ है कि यार कुछ तो अल्लाह को याद कर लूं मैं। ईमान लाना ये भी उसका खौफ है। हर मुसलमान ईमान होकर मुत्तकी है। फिर वो खौफ के दर्जा आते हैं मुख्तलिफ, यानी कि इसके ग्रेड्स हैं। इसी तरह मतलब ये कि तकवा यानी मुत्तकी होना, तकवे के भी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ, सवाल। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, बचपन में हमारे वालिदैन हमें ज्यादा घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? अच्छा करते हैं, और अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। आजकल तो वैसे भी बच्चों को तो बाज़ औक़ात किडनैप कर लेते हैं, उठा कर ले जाते हैं। फिर अगर मालदार का बच्चा, उसको ज़्यादा खतरा होता है कि फिर लाखों करोड़ रुपए मांगते हैं छुड़ाने के लिए। बाज़ औक़ात ये कि मार भी देते हैं। ये जो जालिम दरिंदा सिफत डाकू होते हैं, बाकायदा इनकी टीमें होती है, और ये एक माफिया है। और बड़े बड़े इसमें हाथ होते हैं, बड़े बड़ों की सरपरस्तियाँ होती हैं, इसमें ये करते हैं। तो माँ बाप इसलिए भी नहीं निकलने देते कि कोई उठा ना जाए। दूसरा है कि बाहर हर तरह के बच्चे खेल रहे होते हैं। बाज अच्छे और शरीफ घराने के बच्चे भी होते हैं, लेकिन बाज रफ क्वालिटी, गालियां बकने वाले, मार कुटाई करने वाले, बद अखलाक भी होते हैं। तो ऐसों की सोबत, बद अखलाक बच्चों की सोबत में रहने से बच्चा बिगड़ जाता है। ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है, छोटा था, इसको गली में हम नहीं खेलने देते थे। हाँ भाई, याद है ना आपको? बिल्कुल नहीं निकलने देते। नहीं, जो करना है घर के अंदर, चार दीवारी। बाहर खेलोगे तो बहुत तरह के माहौल उन दिनों भी खराब था, अब तो खराबियों की इंतहा हो गई। घर में हो सकता है कि इसने फिल्म का नाम भी ना सुना हो, और बाहर निकलेगा बच्चों में तो फिल्म एक्टरों के नाम भी उसको याद हो जाएंगे। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, यानी कि बाहर बच्चों में बहुत कुछ, कभी इसने गाली का, इसको आती ही नहीं गाली देना, लेकिन जब बच्चों में जाएगा तो वो तरह तरह की गालियां सीख कर आएगा, और फिर अपने माँ बहनों पर उसका तजर्बा करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, गालियां देगा, मार कुटाई के अंदाज सीख कर आएगा, फिर माँ बाप पर प्रैक्टिस करेगा। तो वो माँ बाप बहुत समझदार है, उनको मैं सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को गलियों में खेलने से रोकते हैं, बल्कि इसको जो भी खेलना है उसका खुद घर में असबाब कर देते हैं। या अगर बाहर ले जाना है तो भले ले जा, तो वालिद साहब की सरपरस्ती में या बड़े भाई की देखभाल हो उसकी। जबकि ये इतने छोटे होते हैं कि वो ना सादा लोह, जो सादा तख्ती, पहले तख्तियों पे लिखते थे, स्लेट पर, तख्तियों पर, अब अंदाज बदल गया है। तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोरी तख्ती है, जो लिखोगे लिखा जाएगा। तो ये उम्रें ऐसी होती हैं बच्चों की कि इनमें जो इनको उल्टा सीधा मतलब होगा वो भर जाएगा, अगर सीधा सीधा होगा वो भी भर जाएगा। तो इसलिए घर में हो सकता है कि इसके सीधा भरे, लेकिन अब घर के माहौल भी अच्छे नहीं है। अगर घर पे गुनाह भरा चैनल चलता है कोई,
اس میں ڈانس ہوتے ہیں اور فلمیں چلتی ہیں، پھر تو کیا گھر ہو کیا باہر، اس نے تو بگڑنا ہی بگڑنا ہے. خود ماں باپ بگڑے میں تو بچے کا کیا علاج. تو میں ان مذہبی گھرانوں کو کہتا ہوں کہ جو مطلب میری باتیں سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کو روکا جائے، گلیوں میں ایسے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے، ایسے بچوں کے ساتھ. ایکسیڈنٹ کا بھی ڈر ہے باہر. یہ تو یوں تو ضمناً تو کئی ڈر رہیں گے، خطرات تو یہ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں کھڈوں میں گڑوں میں، آئے دن کیچڑ والے کپڑے لے کر آئیں گے، امی بیچاری کب تک دھوئے گی، پھر سر پھٹا کبھی پیر ٹوٹا. یہ باہر جو کھلنڈرے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے یہ حساب کتاب آپ کو نظر آتے رہتے ہوں گے. تو بچے قابو آتے بھی نہیں ہیں باہر جانے کے نام پر. چھوٹا بچہ جو بولنا نہیں سیکھا، اس کو جب یہ کہیں گے باہر چلتے ہیں، او مزے کو مزہ آ جائے گا. یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو بچے کو روکیں کیسے؟ مگر شروع سے اگر کوئی کر سکے تو کرنا چاہیے اس کو، جتنا ہو سکے روکیں، بچائیں بری صحبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. اللہم انکا عفو اللہم اللہم انکا انکا عفو عفو کریم کریم تحب العفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنی. اللہم اللہم انکا انکا عفو عفو کریم کریم تحب العفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنی. اللہم اللہم انکا انکا عفو عفو کریم کریم تحب العفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سلمنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم اللہم سلمنی سلم من رمضان من رمضان وسلم وسلم رمضان لی رمضان لی وسلمہ وسلم منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا چاند رات کو ملاقات ہوگی؟ اتنا یعنی کہ انتظار ہے ملاقات کا. یہ تو صبح سے جاگ گئے ہوں گے سارے. میدان مدینہ میں تو جو سو گئے وہ کھو گئے. جوش ہو گیا بابا. جو سوت ہے وہ کھوت ہے. جاگ گئے تو سارے. جو سونے والے تھے وہ بھی جاگ گئے ہوں گے ابھی. دیکھو کیا خوشخبری ملتی ہے. اب میں قافلے والا ہوں. چاند رات کو کم از کم کہ اتنے ہزاروں سے تو میں مل بھی نہیں سکتا نا. نہ یہ سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے فرسٹ وہ ہو. اس کے بعد 92 دن 92 ڈیز
फिर ये कि 1 माह के दीनी मदनी काफिले वाले, 12 दिन वाले, इस तरह फिर 3 दिन वाले, चांद रात को या ईद के दिन जो फिर अपना दारुल सुन्ना वाले जिस तरह इनको सफर करवाएं, रात बस घर ना जाए, फिर यहीं पड़े रहे। मेरी भी बरसों से तरकीब रही है, कोरोना में तो खैर वो तरकीब आउट हुई, इसके अलावा मैं फैज़ान मदीना से घर नहीं जाता, चांद रात यही फैज़ान मदीना में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सारे भैया रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात भी बड़ी बरकत वाली रात और इबादत वाली रात है। तो ये सूरत है कि जो मदनी काफिले में सफ़र करे, लेकिन ये कि वहाँ जमा करवा दे जो भी ये कहते हैं ज़ादे राह, फिर इनको ये टोकन देंगे इंशाअल्लाह। मैं नीयत तो है मेरी, मैं कर लूँगा मुलाकात। अब अल्लाह ना करे कुछ सेहत में कुछ मसला हुआ तो वो तो ज़ाहिर के उज़्र तो हो सकता है इंसान को। तो कौन कौन ज़ादे राह समझते भी नहीं होंगे ना। मैंने ये जो पैसे जमा करते हैं ज़ादे राह, इसको बोलते हैं यानी रास्ते का खर्च। ये 3 दिन का कितना लेते हैं, 12 दिन में ये कितना लेते हैं, ये नहीं है, जब्त करने के लिए नहीं होता है, ये बयाना नहीं है, ये मतलब इसी पर खर्च होता है जो साईं भाई जाते हैं। तो ये जमा इसलिए करते हैं कि काम थोड़ा पक्का हो जाए, वरना हाँ तो लोग करते रहते। तो ये देख लें, अब ये दारुल सुन्ना जाने आप जाने किस तरह आप नाम लिखवाते हैं, क्या इनसे लेते हैं। आपको यूं लगता है कि ये क्योंकि ये मदनी काफिले की आपने फीस रख दी है तो ये तादाद कम हो जाएगी, आपको यूं लगता है? और अगर ये ना हुई तो कम, ये जितने हैं ये सब ने अगर कुछ या बड़ी अक्सरियत ने अगर कर दिया तो दोनों बाप बेटे बैठ जाएंगे यूं। ये क्या पता ये जोश में आ गए हो, नहीं यार बस अब तो अल्लाह मदद करेगा। वैसे तजुर्बा तो है पुराना के सारे कहाँ यार, अल्लाह वो दिन लाए के ये सारे अल्लाह के लिए सफर करें। मुलाकात के लिए तो सफर करना भी नहीं है, करना तो अल्लाह के लिए, अंडरस्टूड है। अल्लाह पाक राजी हो जाएगा तो करम हो जाएगा। तो बहरहाल एक मुलाकात का शौक होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। 20 रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी में कुरान पाक की तिलावत की नियतें। 3 कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 36,996। 2 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करने वालों की इस्लामी बहनों की तादाद 3 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करने वाले इस्लामी बहनों की तादाद 22,171। 2 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करने वालों की नियतें।
اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,081، اسلامی بہنوں کی تعداد 33,187۔ ایک مرتبہ قرآن پاک تلاوت کرنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 57,673، اسلامی بہنوں کی تعداد 76,624، کل یعنی تینوں کی تعداد 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ تلاوت کرنے والوں کی، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,17,750، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,31,982، اور ان سب کی ملا کر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تعداد مجموعی تعداد 2,49,732۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد جس مسجد میں جھنڈا گاڑا گیا اس کا نام بتائیے۔ مسجد رایا۔ سوال نمبر 2، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا گوشت کھایا ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے۔ جواب، بکری۔ کس گناہ کے کرنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے؟ جھوٹ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت راشد عطاریہ، میرپور خاص، بنت شعبان چشتی، نارتھ کراچی، بنت مشتاق عطاریہ، پاک پتن شریف، فرقان عطاری، ڈاہراں والا، محمد شعیب عطاری، ملک وال، بنت عبد القادر عطاریہ، ڈی جی خان، ابو شاہد خالد حسین عطاری، گھوٹکی، سندھ۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ابو شاہد خالد حسین عطاری، گھوٹکی، سندھ۔ انہیں تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے انہیں 12 مہینے تک گھر پر کلرفل ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں، اور اس کا جواب جو ہے وہ کل عشاء تک دینا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام نے کس مقام پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی؟ سوال نمبر 2، انسان کا ہمزاد کب پیدا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کس تاریخ ہوئی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔